Good morning, boys and girls. Today I have been taking the topic permutations and combinations. One very good, interesting topic in algebra in your course. Normally, there is a phobia about permutations and combinations because they are not able to guess or to find out the way that how to start, how to do it, how to solve the questions, what are the things are behind the thinking, what we are not able to have it. So many of the things are there in permutations and combinations. I shall try to make it easier. Your teachers are there, your other persons are there who are guiding you. They might be taking in better way, but my own way is somewhat, I don't know to what extent it will be accepted. And now let me start. It won't be having many formulae, only thinking and attempting the sums. A sum base formulae may be 2 or 3. So okay, be ready. All of you be ready. And I'm starting the topic first, permutations. But I would like to start, though normally permutations the separate chapter, combinations the separate chapter, may it be sometimes I'll be taking permutations and combinations simultaneously. So first of all you should be understanding permutations or factorial or some of the things. Yes, my boys, girls, say 4 boys are outside this door and three chairs are here. I am making the circle 3. 3 chairs are here and 4 boys are there. 4 boys are there. They are waiting outside and they are told to be seated in chair. So each one of the 4 are thinking to occupy the first seat. So how many ways can be there that this seat can be occupied by any one of the 4 ways. या तो फर्स्ट आ सकता है, नहीं तो ये सोचेगा ये, नहीं तो ये सोच रहा मैं, या ये सोचेगा ये, यानी इस जगह पर 4 लोगों की पॉसिबिलिटीज हैं. कोई एक उसमें बैठेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक तो बैठेगा ही ना. सोच 4 है, सोच 4 है, लेकिन बैठेगा तो एक ही. अब कितने बचे? मान लो कि एक हट गया. अब 3 बचे. उन तीनों में से कोई सोच रहा है कि मैं बैठूं, दूसरा सोच रहा है मैं बैठ जाऊंगा, तीसरा सोच रहा है मैं बैठ जाऊंगा. इसलिए इस जगह पर बैठने का, क्योंकि 3 ही लोग बचे हैं, एक ने तो पहले ही कवर कर लिया है. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 नाउ नो फर्दर लॉजिक. 2 में से कोई एक चाहेगा 2. अब आप नहीं पूछेंगे एक क्या हुआ, अरे 3 ही चेयर्स हैं. इसलिए 4 में से इन 3 को ले आने के लिए, पहले के चेयर को भरने के लिए 4 तरीके, दूसरे को 3 तरीके, तीसरे को 2 तरीके. अब मैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूं. मैं दूसरी बात बता रहा हूं. आई विल बी कमिंग आफ्टर ए मिनट. देयर इज ए प्लेस ए, there is another place B, another place C. From A to B there are 3 ways
and from B to C there are two ways. In how many ways a person can reach from A to C via B? A से C तक पहुंचने का कितने रास्ते होंगे B के द्वारा? एक कॉमन आंसर होगा 3 and 2 5. नहीं, देखो, it is, look here, this is one way, this is one way, and this is, yes, two way. Then here one way and the same. Then here this is another way. आपको यहां से नहीं जम रहा है तो आई एम रमिंग इट, पॉइंट लगा करके A, B एंड C, वो सर्किल में आप, तो एक हो सकता है ऐसे जाए, A to B, एंड देन एक हो सकता है ऐसे डायरेक्ट जाए B तक, एक ऐसे जाए C. अब फिर देखिए, द वे, वन वे, टू वे, थ्री वे, देन फोर वे, देन फाइव वे, देन सिक्स वे. फिर से बतलाऊं कहीं ऐसा नहीं. दिस इज वन वे, दिस इज सेकंड वे, दिस इज थर्ड वे, और यहां पहुंच गया. या ऐसे देखो, वो सब ऐसे गया, और यह हो सकता था ऐसे जाकर के ऐसे गया, फिर ऐसे जाकर के ऐसे गया, फिर ऐसे करके, यानी कुल 6 वेज हो गए, 6 डिफरेंट वे हो गए. यानी इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क 3 ways and possibility of doing another work 2 ways, then the total ways of working or completing or reaching the target is 3 into 2 ways. 3 into 2 ways, not 3 plus 2. Similarly, if one chair can be filled by 4 ways, the second chair can be filled by 3 ways, and third chair being filled by 2 ways, then the total number of different ways, out of 4 students, the 3 chair can be filled, never 4 plus 3 plus 2, but 4 into 3 into 2, never 4 plus 3 plus 2, never. मतलब अगर एक काम को करने का तरीका, अगर 4 तरीके हैं और दूसरे काम को करने का तरीका 3 करना, तो दोनों को एक साथ डिफरेंट ढंग से करने का तरीका 4 plus 3 नहीं, 4 into 3. अगर मान लो इसके एग्जाम्पल में, इफ देयर हैड बीन m ways, n ways और p ways, the total work can be done by m plus n plus p. No, that is m into n into p. एक बात, ये एक लेमा है, ये समझाने का एक वे हुआ. अब चलिए हम आपको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Say there are n persons waiting outside and number of chairs are inside. Instead for n boys and number of chairs instead of 3 are. तो पहली वाली चेयर पर बैठने का तरीका क्या होगा? n, जैसे उसमें 4 था. दूसरे वाले चेयर पर बैठने का तरीका एक कम हो जाएगा ना जब एक बैठ जाएगा. तो तीसरी वाली तरीके का n-2, तीसरा, थर्ड बोल रहा हूं और 2 लिख रहा हूं. पहले में n, दूसरे में n-1, थर्ड n-2, फोर्थ n-3, 5 n-4, 10
n माइनस 9 एक कम ना, 15 n माइनस 14, 100th n माइनस 19। तो rth चेयर जो होगा, rth चेयर n माइनस एक कम होगा ना, ठीक। n लोग बाहर थे, पहली चेयर को बैठाने का तरीका n था, दूसरी चेयर पर बैठाने का तरीका n माइनस 1, फिर तीसरी पर n माइनस 2, 10th पर n माइनस 9, 1 लेस 10 माइनस 1, 100th पर n माइनस 19 यानी n माइनस 100 माइनस 1। तो rth चेयर पर बैठाने का तरीका n माइनस r में से 1 लेस, r वी कैन से दिस इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश लास्ट में n माइनस r प्लस 1, ब्रैकेट खोल दिया n माइनस। सो इन हाउ मेनी वेज r chairs कैन बी फिल्ड बाई n different things, or r gaps या r boxes can be filled by n different things, that is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dash 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 n minus r plus 1 factorial। फैक्टोरियल बच्चों जैसे फैक्टोरियल 5, oh I tell you, in books or your teachers might be teaching 5 way this way, but I am not in practice. Look here, I am not in practice, so I will be writing this one, and this is, it should be going decreased 5 4 3 2 1 ऐसा, ये इसको फैक्टोरियल कहते हैं। लेकिन मैं लिखूंगा ऐसे ही, नॉट लाइक दिस। हम लोग पढ़े हैं ऐसे ही, हम लोग जाने हैं। और बुक्स में क्यों बाद में किया गया ऐसा, क्योंकि उनको 2 लाइन करनी पड़ती। देखो प्रिंटिंग में ऐसा फिर ऐसा, तो पूरा उनको 3 लाइन इसमें खर्च होती थे। तो तमाम लोगों ने सब बैठ करके बताया कि भाई अगर यही बात है तो ऐसा कर दीजिए, ये जो सामने वाला। लेकिन हमको कभी कभी गलती क्या होने पड़ी, 4 फैक्टोरियल को मैंने 41 समझ लिया, वो अगर बिंदी नहीं पड़ी तो इसलिए आई शैल बी राइटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज द फैक्टोरियल, माई फैक्टोरियल, दिस इज कॉमनली नोन। सो इफ इट इज देन फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल r इज r into एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ, कम 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 कम। अच्छा, r इज ए नंबर, होल नंबर, ये नहीं कि यार कम 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 करते हुए माइनस आप ये वहां तक जाएगा। तो दैट इज 3 2 1, ये हुआ फैक्टोरियल्स की बात। नाउ कम टू दिस वे, आई रब इट नाउ, क्वेश्चन आएगा, कुछ खास नहीं, शुरुआती बताना पड़ा था हमको। ये वर्क इज ओवर, परमुटेशन का जो बेसिक बात है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी लालच है कि मैं भी इसको फैक्टोरियल में रखूं, तो आप कहेंगे सर आप ऐसा कर दीजिए, इसको 1 तक लाएंगे तभी ना होगा। अरे तो करना, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर, एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ, एक एक कम। अरे कभी तो आएगा ना यार, कौन है ये नंबर है, लाइक 15, लाइक 100, लाइक 99। तो ये तो अपनी मर्जी से फैक्टोरियल बनाने की लालच में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपकी लालच नहीं चलेगी। यू हैव टू डिवाइड आल्सो, मैथमेटिक्स कैन नॉट एक्सेप्ट इट, मैथमेटिक्स कैन नॉट टॉलरेट इट। सो अगेन डिवाइडिंग बाई n माइनस r माइनस 1 डैश डैश 3 into 2 into 1। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा किया? लालच था मेरा फैक्टोरियल में निकालने को, क्योंकि n से शुरू हुआ और घटते घटते वो 1 तक पहुंचा, तो दिस हैज बीन फैक्टोरियल n। और नीचे वाला
n-r से घटते 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 1 तक पहुंचा, इसलिए फैक्टोरियल n-r. सो दिस इज रिटेन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r. This explanation is called other way. Either I have told that R chairs in how many ways can be filled by from 9 n persons, maybe some. Then if I say that number of arrangements की जगह पर number of permutations, number of, इसी को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का है या नंबर ऑफ परमुटेशंस. अब चलिए, जो मैंने शुरू किया था वो वर्ड आ ही गया. नंबर ऑफ परमुटेशंस, अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, एंड डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स. सो नंबर ऑफ परमुटेशंस आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अरेंजिंग या selecting are different things out of n different things. That is called, in short, that is NPR. NPR. In your book it will be written PNR, ऐसा देगा, लेकिन I am in habit of writing this. So दो हैबिट, मेरी पुरानी हैबिट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा. फैक्टोरियल जब मैं लिखूं कॉन्ट्रेरी टू योर बुक, दैट विल बी हियर दिस टाइप, एंड एनपीआर को मैं लिखूंगा बाहर पी लिख करके अंदर एन कामा आर कर दूंगा. ये दो चीजें हमारे इसमें करना पड़ेगा, बाकी चीजें तो सब. तो आइए शुरू करता हूं मैं क्वेश्चंस. खत्म 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 खत्म. थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे, अरे उसके बाद टिपिकल आएंगे, ऐसा नहीं है. मैथमेटिक्स है तो इसको अपना जलवा तो दिखाना ही है ना. चलो, अगर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p4, फाइंड द वैल्यू, तो आप कहेंगे सर यू राइट हियर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r. चलिए 6 - 4, एंड दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड दैट इज 6, हाँ, दैट इज 6 5, अरे 4 है ना, 6p4 ठीक तो है. हाँ 6 5, हाँ 6 5 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको भी 1 तक ले जाओ. फैक्टोरियल का मतलब गो अप टू 1, फैक्टोरियल 2 मीन्स गो अप टू 1, बट दिस 2 1 cancel, and this is 6 5 4 3, खत्म बात. चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं. 9c3. I have got some purpose of writing 9c3, that is factorial 9 upon factorial 6, factorial n upon factorial n-r, and then this is 9 8 7 6 5 4 3 2 1, and upon factorial 6 6 5 4, सब 1 तक ना, and then this is cancelled, and this is 9 into 8 into 7. तो
कॉमन बॉय या कॉमन स्टूडेंट ये सोचेगा सर इन दोनों को देखने पर 6π4 6p4, आपने 6 को 1 तक ले गए, 4 से 1 तक ले गए, नीचे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन था कैंसिल कर दिए, बचा इतना 6543। तो क्यों नहीं, वो हमको बता रहा है स्टूडेंट, क्यों नहीं आप ये 4 है तो 4 ही स्टेप तक जाइए नीचे, 4 ही स्टेप तक नीचे जाइए, क्योंकि वो बाद में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। 9 क्यों, क्या क्या जरूरत है, 9p3, सी कहां से आ गया, 9p3 तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3 6, और उसको 9 8 7 गए, 65 वहां तक गए, 65 वो फिर कटेगा, तो उसके दिमाग में रहेगा कि 3 ही स्टेप तक जाने से काम बन जा रहा है। तो जो नीचे हो उतने स्टेप तक ही जाओ, जहां मजबूरी होगी वहां पर जाना, लेकिन फिलहाल तो उतने ही स्टेप तक जाओ। ओरल क्वेश्चन कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, 9p2 इज व्हाट, 2 स्टेप जाओ, इक्वल टू 9 × 8, 2 ही स्टेप। मैं कहूं 6p3 कितना जाओगे, 6 5 4। मैं कहूंगा 10p6 कितने स्टेप जाओगे, 6 स्टेप तक, 10 9 8 7 6 5। तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप उतने ही स्टेप तक जाना। अब जहां जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में हम करेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं इसको बात को। तो ये कंप्यूटेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल जब होगा तो होगा। आइए पहले, लेकिन परमुटेशन इतना ही नहीं है ना, यही नहीं है ना, ये तो केवल हम इसको ले रहे हैं कि कैसे हम ओरली नहीं, राइटिंग में भी। किसी ने कहा यस आया आपका लास्ट में रिजल्ट 9p4, अरे यार 4 स्टेप जाओ ना, खत्म, दिस इज द आंसर। डोंट गो टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4, जस्ट गो टू 4 स्टेप्स एंड गिव द रिजल्ट। किसी ने कहा MP2 कहां तक जाओगे, m × m-1, बस 2 स्टेप। ये मैं कह रहा हूं, तो इतना तो मैं समझता हूं कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, from the letters of word article, मैं कैपिटल में लिखूंगा, आपको भी लिखना चाहिए जब कोई क्वेश्चन करें, क्योंकि वो छोटे मोटे में वो सब उसी में गायब हो जाते हैं। आर्टिकल, स्पेलिंग आप अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, जो स्पेलिंग बुक में हो वही चलेगी। वैसे नॉर्मली वो सही स्पेलिंग देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं। अगर मान लो उन्होंने ई नहीं रखा तो आर्टिकल का यही है जो उतना देगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ many words can be formed first by taking all the letters, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं आर्टिकल के अक्षरों से, टोटल सब को। अच्छा, मीनिंग हो या नो मीनिंग हो आप कोई डिसाइड नहीं करने वाले, वो क्वेश्चन वाला है, कह रहा है मे बी हैविंग प्रॉपर मीनिंग और नॉट हैविंग, और आपके यहां नहीं है तो हिंदुस्तान के बाहर होगा कोई मीनिंग। इसलिए आप मत सोचिए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते। कह रहे हैं आप सर देयर आर 7 लेटर्स,
और कह रहा है वो तो क्वेश्चन में ऑल द लेटर्स यानी 7 में से ऑल 7 लो, तो 7 फर्स्ट आंसर होगा 7p7। और इसको कहते हैं फैक्टोरियल 7। जब सभी हो मैं थोड़ा समझा दूंगा, बल्कि उसी में समझा देना था लेकिन नहीं हुआ। एक थोड़ा सा यहां पर npn दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, यही फॉर्मूला है ना npr का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही फॉर्मूला है। सो बाय फॉर्मूला एंड दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन 1 एंड दैट इज फैक्टोरियल n। यानी टोटल क्यों फैक्टोरियल 0 हुआ, 0 क्यों नहीं हुआ, दूसरी बात यहीं पर समझा रहा हूं। फैक्टोरियल 0 is 1, फैक्टोरियल 0 is 1। हाउ, दो वे। एक वे तो यह है कि अगर n से n को ले, द वन वे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 n माइनस n प्लस 1, एक ये हो गया n p n इक्वल टू, अरे फैक्टोरियल 5 से लेकर के 1 तक, फैक्टोरियल 10 9 8 7 ऐसा करके 1 तक। तो npn is from n to 1 and that is equal to, अभी that is equal to factorial, so that is equal to factorial n से लेकर के, मैंने कहा n बार। तो द अदर वे, फॉर्मूला वे, npn मैं वहां लिखा हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। So this is one way and this is the second way. Therefore here factorial n is equal to factorial n upon factorial 0. Factorial n equal to factorial n upon factorial 0. It is only possible if factorial 0 is 1. If फैक्टोरियल 0, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपन, अरे एक मेथड से हमारा आया फैक्टोरियल n, दूसरे मेथड से आया फॉर्मूले मेथड से, वो एक्सप्लेनेशन मेथड से आया, ये आया फॉर्मूले मेथड से फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल 0, दोनों एक ही हैं तो दोनों को इक्वल किया तो यहां देख रहा हूं फैक्टोरियल 0 इज 1, अरे ये यहां कट गया फैक्टोरियल 0 इज 1। सो दो बातें हमको मिल गई कि हमें एक तो सारी चीजें, अगर मान लिया 10 में से 10 को लेकर के कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं विदाउट थिंकिंग फैक्टोरियल 10, हाउ मेनी वेज द अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय टेकिंग 5 थिंग्स आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल 5। तो यहां पर ये 7p7 इज फैक्टोरियल 7। सेकंड क्वेश्चन, इसी से सेकंड क्वेश्चन, टोटल लेटर्स आर टेकन but words begin from A and end with E। कह रहा है A से शुरू हो और E से अंत हो, मतलब A वो जो है अंगद की पांव की तरह से इन्होंने पांव जमा लिया, कहा कि हम तो हटेंगे नहीं। ई ने कहा कि मैं भी नहीं हटूंगा, अपनी जगह पर रहूंगा। तो फिर हमारे पास कहा बेटा RTICL तुम ही लोग हो जो इधर उधर नाचोगे,
ए और ई अपनी जगह पर रहेंगे तो कहोगे सर तब तो RTICL को अपने इधर उधर घुमा दीजिए, ए और ई तो खिसकने वाले नहीं हैं तो 7 लेटर्स, लेकिन ए फर्स्ट प्लेस को ले लिया, ई लास्ट प्लेस को ले लिया, हटूंगा नहीं। तब समझाना पड़ा बेटा RTI आपको भी 2 तरीकों से बांधा जा सकता है, ए शुरू से हो तो ई अंत में हो, या ई शुरू में हो तो ए अंत में होगा। भाई किनारों पर है तो किनारों पर रहिए, आपको ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप बीच में जाइए, लेकिन आपको किनारों पर रहने का ऑर्डर मिला है कि ये लोग किनारे पर रहे। आइए साहब ई इधर आइए, ए उधर जाइए। तो खुद ए और ई कैन बी मैनेज्ड इन 2 वेज, ए और ई या ई और ए। तो ए एंड ई कैन बी मैनेज्ड इन 2 वेज, यानी फैक्टोरियल 2। और वो तो RTICL बेचारे गुड चिल्ड्रन हैं, उनको तो आप कैसे भी कर देंगे, कहेंगे सर हम लोग तो तैयार ही हैं, आप जैसे कहिए। तो उन्होंने कहा बेटा आप रह जाओ फैक्टोरियल 5 वेज में। तो क्यों वहां अकेला फैक्टोरियल 5 रहा? क्योंकि ए अपनी जगह पर फिक्स रहा, ई वहां पर, तो वो हिले नहीं। लेकिन जब कहा गया कि नहीं ए और ई किनारों पर रहें, ऐसे वर्ड्स बने कि आइदर दैट शुड स्टार्ट विथ ए और शुड स्टार्ट विथ ई, तो खुद आपस में दोनों 2 तरीके से हो सकते हैं, और ये फैक्टोरियल 5 से। आई कैन हिंट द स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक हमारा काम पूरा ना हो। कभी कभी ये आपको डाउट होगा, व्हाई नॉट दिस वन, प्लस क्यों नहीं किया? बेटा न 2 से पूरा हो रहा है न 5 से पूरा हो रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। दूसरा मैंने बताया था वहां पर, इफ देर इज एनी मेथड ऑफ डूइंग m ways and the other work can be done in n ways, or the third work can be done in p ways, then m into n into p, या one work can be done in m ways, the other work can be done in n ways, then the both work can be done in m into n, not m plus n। हमने a to b to c मैंने रास्ता बताया था, मैं समझता हूं कि उससे क्लियर होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेवर ऐड करेंगे तब जब काम एक तरह का पूरा हो जाए, तब उसके बाद भले हम ऐड करें, देखेंगे क्वेश्चन है। देन फोर्थ, वॉवेल्स आर पुट टुगेदर, एक साथ रहे भाई, बड़ा प्यार है इन लोगों का। कह रहे हैं हम लोग भैया हम लोग वॉवेल्स हैं और हम जहां भी रखिए हम चलेगा, लेकिन एक साथ चलेंगे, एक साथ रहें, वॉवेल्स एक साथ रहें। कितना भी वर्ड्स बनाइए, फैक्टोरियल 7 आप वर्ड्स बना सकते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग 7 लेटर्स, तो 7 लेटर्स से फैक्टोरियल 7 वर्ड्स बना सकते हैं, टेकिंग ऑल लेटर्स 7। लीजिए बनाइए आप 7 लेटर्स वर्ड के, लेकिन हम लोगों को एक साथ रखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये करिए कि यहां पर ये RTCLAIA कहा गया भैया आप एक ही जगह रहिए। अब ये खुश हो रहे हैं, अरे हम लोग तो एक साथ हैं। तो उनको जहां भी बांध करके है, जहां भी हटाया जा रहा है, अगर कहा जा रहा है पहली जगह पर आइए तो क्या करेंगे, AIE एक साथ आ जाएंगे, बीच में आइए तो ये, लास्ट में आइए तो ये, माने वो तीनों मिलकर के एक हो गए। जैसे बोरा दौड़ होता है, क्या दौड़ होता है ना, बच्चे जो हैं दोनों करके तो एक साथ दौड़ते हैं, वही एक साथ दौड़ेंगे। तो कहा गया कि दिस इज 1 2 3 4, इनको एक ही मान लिया ना मैंने, क्योंकि इनको कहना है हम एक साथ रहेंगे। तो दिस कैन बी डन बाई 1 2 3 4। अभी जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, फैक्टोरियल 5 वेज। तो कोई लड़का होशियार था, वो जा करके इनको पकड़ा, कहा तुम्हारी इतनी मनमानी, सर सीधे हैं तो क्या मतलब है, आप तीनों को एक बना करके करा दिया कि अच्छा भाई घूमो फैक्टोरियल 5 तरीके से, लेकिन फैक्टोरियल 5 मतलब 5p5 फैक्टोरियल 5। उन्होंने कहा ऐसा नहीं मानूंगा।
तुमको भी घुमाऊंगा इधर से उधर, खुद अंदर में ये घूमेंगे। ए शुरू तो आई बीच में ई, या ई बीच में ए, ऐसा करके जो ये 3 लेटर्स हैं, दे कैन फर्दर बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 ways. So this is factorial 3 ways, and therefore क्लियर हुआ कि नहीं? ए आई ई चाहते थे एक जगह जाना, जाइए, और 4 ये था, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 5। तब तक वो लड़का आया और उसके बाद कान उमेठा तीनों लोगों का तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी, आप लोग भी इधर उधर नाचिए। तो नाचने का तरीका 3 लोगों को 3 जगहों पर फैक्टोरियल 3 ways. So total answer is here, and that I am not calculating factorial 5, 5 4 3 2 1 3 2 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इसी का 5th पार्ट। All the vowels are never put together. All the vowels are never put together. All the vowels are never put together. सभी वॉवेल्स एक साथ न रहें। सभी प्लीज ये बड़ा दिमाग रखे करिएगा। ऑल कह रहा, ऑल 2 रह सकते हैं एक साथ, सभी एक साथ न रहे, सभी का ये जो गोलबंदी है वो न हो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितना बने, टोटल माइनस जब एक साथ रहे, ऑल द वॉवेल्स आर पुट टुगेदर। ये फैक्टोरियल 2 क्यों किया था? कहीं गलती तो नहीं किया था? हाँ, ऑल द वॉवेल्स नहीं, 5 फैक्टर 5 इंटू, यही तो था। ये पता नहीं किसका क्या क्या था। अच्छा, ए एंड डी का था, वो ए एंड डी का था। ऑल द वॉवेल्स यहाँ ऑल द वॉवेल्स, और यहाँ क्या? ऑल द वॉवेल्स, यहाँ ऑल है। तो यहां पर क्या है कि वो सभी, तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना वर्ड्स बनेंगे माइनस जितने एक्स। अरे भाई पूछ रहा है कि ऑल द वॉवेल्स मस्ट नॉट पुट टुगेदर, तो आप कहेंगे सर कितना टोटल वर्ड्स बने थे? कोई लड़के ने कहा टोटल कितना वर्ड बने? मैंने कहा बेटा ये तो फैक्टोरियल 7 बने थे, आपने पहले ही जाना था। लेकिन कितना एक साथ रहने वाले बने थे? हटाइए उनको, इनको हटा दीजिए। तो क्या हो गया कि माइनस वो वाला फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। कहा इन लोगों का ऐसे कचरा लोगों को हटाइए जो एक साथ रहना चाहते हैं, ऐसे वाले हमको एक नहीं चाहिए। तो बेटा ये कर लो, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। एंड वेरी गुड। नेक्स्ट एक और इस टाइप में एक और लिख दे तब। एक और लिख दे। None of the two vowels. Oh, good. कितने लोग चालाक हैं। None of the two vowels are put together. None of the two vowels, none. This is important. वहां all को मैंने
इंपॉर्टेंट बताया था, यहां नन को बताया। नन ऑफ द टू वॉवेल्स आर पुट टुगेदर, यानी उसमें कहा, इसमें पहले कहा ऑल, सभी एक साथ न रहें, दो चलेगा। कहा नहीं नहीं, अब हमारे आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे, कोई भी वॉवेल को एक साथ रहने ही नहीं देंगे। यानी दो वॉवेल हैं तो भी नहीं, तीन वॉवेल्स हैं तो भी नहीं। तब क्या किया, तो लोगों ने कहा चलो भाई तुम्हारी बात मानते हैं, RTICL, आर्टिकल, क्यों ये रहेगा RTCL, हाँ बस ये भी नहीं रहेगा, ये भी तो वॉवेल है ना, RTCL। तो कॉन्सोनेंट्स ने कहा ऐसा कर लीजिए सर, ये हमसे बात करते हैं ये सब। इन्होंने कहा सर ऐसा कर लीजिए, हम लोग जो है ना, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनके आजू बाजू अगल बगल कहीं भी रख दीजिए, हम लोग इनको दबाए रखेंगे। जैसे AIE, या ऐसे क्यों लिखूं मैं, ऐसे कर दूं, ऐसा सर्किल बना दूं, ऐसा। ये कहा इन तीनों जगहों पर कहीं भी रखिए आप वॉवेल्स, तो देखो R और T के बीच में, T और C के बीच में कहीं लोगों के फिर से कोई दोस्ती नहीं हो सकती, किनारे किनारे सब पड़े हुए हैं। तो कोई और होशियार लड़का था, कहा सर आप क्या करिए कि ये भी जगह रखिए ना, ये किनारे हैं, ये भी किनारे हैं, अगर इन जगहों पर अगर आप रखेंगे तो कभी भी पास नहीं। अरे ये रहेगा A, तो यहां I है, बीच में R कहेगा खबरदार। अगर मान लीजिए कि यहां पर रहेंगे, है ना, ये गोले में यहां पर वॉवेल रहेंगे, तो L कहेगा अरे मेरे पास आना नहीं, मैं तो तुम लोगों को पहरेदारी के लिए ही रखा गया हूं। ये ठीक है, वॉवेल्स विल नेवर बी पुट टुगेदर, कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं रहेंगे। सो ये हुआ कि कितने प्लेसेज होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 में से किन्हीं भी 3 को रखोगे, इसलिए कहा उन्होंने फर्स्ट पेज 5P3, द 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 प्लेसेज, दैट इज 5P3, राइट। तो ये RTCL चिल्लाने लगे सर हम लोगों को क्यों सड़ा रहे हैं, अरे थोड़ा हम लोगों को भी जगह बदल दीजिए, कभी तो ये वॉवेल्स के बगल में दर्शन हो, दूसरा वॉवेल आए। तो उन्होंने कहा ले बेटा तेरे को भी हम छूट दे रहे हैं, और 4P4, एंड दैट इज, ये कर दूं आपको बताया हूं बेटा, अगर 3 है तो 3 स्टेप्स डाउन हो, 5 4 3 स्टेप्स, ये 3, ये 4 है, 4 स्टेप्स डाउन करिए, इंटू 4 3 2 1, एंड दैट इज द आंसर। वो कैलकुलेशन आप करिए, मेरा काम थोड़ी। चलो एक ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछूं। देयर आर 8 बॉयज, there are 8 boys, yeah, out of इतना क्यों, इतना लड़के रखे, कम ही लड़के रखे, चलिए 8 boys and 6 girls, how many arrangements can be made, how many seating arrangements can be made so that first all the girls may sit together, may क्या sit together,
Second, all the girls will not sit together. And third, none of the girls will sit together. आज हमें लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा ही लिखूंगा, क्या करूं, मैं अपने ढंग से थोड़ा टिपिकलिटी बनाना चाहता हूं, अरेंज नहीं रहते क्वेश्चंस। ये ऐसे अब फर्स्ट को आए। गेटिंग बोर? गेटिंग बोर? नो थैंक यू। थोड़ा टिपिकल है तो all the girls sit together। चले साहब, यहां पर फर्स्ट, यहां किनारे वाली जगह पर आई एम टेकिंग इट, all the girls sit together, यानी 8 बॉयज तो है ही हैं, 8 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ये बॉयज हैं। और वो जो 6 हैं उनको ऑर्डर मिला है इन 6 को एक ही जगह बैठाना, इनको बहुत बात करने का शौक है। टीचर ने कहा नहीं, इनको 6 को एक जगह बैठाओ, तो कहा ओ भाई गर्ल्स, इसलिए G1, G2, G3, G4, G5, G6 और ऐसा कर दिया, आप एक ही जगह रहिए। लंबा सा इनको चेयर्स दिया और इनको लंबा सा एक बेंच दे दिया, ऑल 6 आर देयर। कहा इनको हटाना भी है, एक साथ रहेंगी, तो कहेंगे सर ये तो गलत बात है, हम लोग एक ही जगह रहेंगे। कहे नहीं नहीं, आप लोग रहेंगे एक ही जगह, आप अपनी जगह बदल सकती हैं। कैसे? आप आइए, वो पूरा लंबा बेंच इधर कहीं भी आ जाएगा, लेकिन जाएंगी आप एक साथ ही, है ना। तो ये हुआ 8 तो ये है और 6 ये है, इसलिए 8P8 इंटू 6P6, इन 6 को एक जगह। तब उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये इन लोगों को 8 तो है ही है और एक ये भी है बेंच, इसलिए 9 कहिए ना, 9P9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अरे आखिरकार ये भी तो हटाना पड़ेगा ना कहीं, तो 9P9। आप चिल्लाने लगी वो लड़कियां, हैं कहीं सर एकदम बैठे बैठे हम लोग एक ही जगह, है ना, ये कमर अकड़ गई है, यानी ये कहिए कि नहीं एक ही जगह बैठी है, G1, G2, G3। फिर उनके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको जो ऑर्डर है वो एक साथ रहने का है, एक ही जगह पर नहीं रहने का है, एक ही जगह पर नहीं रहने का। तो उन्होंने कहा चलो हम उसके बाद से आपको भी इधर उधर कर देंगे, तो वो 6P6। 9P9 क्यों? 8 बॉयज हैं और वो 6 गर्ल्स मिलकर के एक, टोटल 9 से 9 प्लेसेस में रहना था। फिर उसके बाद G1, G2, G3, G4, G5, G6 से उनको चिल्पो नीचे, हम लोग तो एक ही जगह बैठे बैठे एकदम अकड़ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अपनी जगह पर घूमिए। तो फैक्टोरियल 6 यानी फैक्टोरियल 9, 8 और 1, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 6। बाकी काम आपका। Second, all the girls will not sit together. All the girls will not sit together. Second answer, थोड़ा बताइए ना, जरा लंबा ले लिया। All the girls never sit together. तो कहा गया करे
तब तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, हाँ टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। तो लोगों ने बताया कि देखिए सर 8 तो बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, यानी अगर कुछ भी आप कंडीशन नहीं देते, कहीं भी रहते, 2 बॉयज़ रहते, 2 गर्ल्स रहते, एक इधर रहता एक उधर रहता, तो हो जाता टोटल 14, यानी 14 को 14 जगह पर होते तो 14P14, 14 लोगों को 14 जगहों पर रखने का इंतजाम 14P14 होता। लेकिन नहीं, इनमें से उनको हटाइए, all the girls will not sit together, माइनस करिए 9P9 इंटू 6P6, हटाइए इनको। और लास्ट में है none of the girls, किसी को तो ऑब्जेक्शन हुआ, आई एम कमिंग हियर, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। क्या हुआ था, ये लोग एक साथ बैठे ना तो बहुत मस्ती करने लगे, चिल्पो मलने, एक दूसरे से बात करने लगे, ये सब। तो ऑर्डर हुआ कि नहीं, कोई भी 2 लड़की साथ साथ न बैठे, कोई भी 2 लड़की साथ साथ न बैठे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, 8 बॉयज है, 8 बॉयज हैं, तो 1 B1 लिख दूं क्या, B1 B2 B3, अरे ये कितना 8 क्यों लिया, हम कम ही लिए होते। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। अरे क्या जरूरत थी, जब मुझे एग्जाम्पल ही लेना था तो 8 बॉयज नहीं लेते, 4 बॉयज 3 गर्ल्स लेते। चलिए, तो और गर्ल्स को कहा गया नहीं, कोई भी 2 लड़कियां, सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे हैं तो सभी लड़कियां एक साथ बैठने वाला तरीका हटा दिया था। नहीं नहीं नहीं, आप कोई भी एक साथ नहीं है, अब इनको लड़कों की पहरेदारी में बैठा गया। तो कितनी जगह बनेंगे, क्रॉस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और किनारे, यानी कुल मिलाकर के 8 बॉयज के अगल बगल और बीच के जगहों मिलाकर के 9 ऐसे जगह बने जहां 6 गर्ल्स को बैठाता, कभी भी एक साथ नहीं रहती, कोई न कोई बॉय किनारे रहता। एंड देयरफॉर दिस कैन बी डन इज 9P6 और फिर ये 8 लड़के तो अपनी भी जगह पर बदलेंगे, 8P8। इतने तरीके होंगे, यानी 9P6 को आप करेंगे साहब, बहुत लंबा चौड़ा ले लिया, नहीं लेना था बेटा, ये 6 स्टेप्स डाउन करो, 9 8 7 6 5 4 3 नहीं 3 तक नहीं जाएगा, 9P6 यानी 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6 इंटू 8P8 फैक्टोरियल 8P8 यानी 8 से लेकर के 1 तक, ऐसा है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर मैं आऊंगा, आपके बुक से भी आऊंगा, लेकिन वो एक साथ हो जाएगा, ये तो इतना डिफिकल्टी दे पाए नहीं दे पाए, आई डू इट। From the digits 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, अब उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी 2 digits numbers can be made। टू डिजिट्स का मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, इकाई और दहाई, यूनिट प्लेस
और टेंस प्लेस यही है, इनमें रखना है हमको। तो उसमें से हमने किया क्या कि 2 डिजिट का नंबर है तो कहा कि भाई आप आ जाइए, नहीं आप आ जाइए, नहीं आप आ जाइए। याद करिए 4 बॉयज थे और 3 चेयर्स थी, तो उनमें से तुम आ जाओ या तुम आ जाओ या तुम आ जाओ। ऐसे ही 5 में से कोई एक आ सकता था। जब एक आ गया तो रिमेनिंग कितने बचे? 4, सो 4 एंड दैट इज 5 into 4 दैट इज 20। 20 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 2 डिजिट्स नंबर बनेंगे उस डिजिट से। दूसरा 3 डिजिट्स नंबर, अरे बिल्कुल यार, यूनिट, टेंस और 100, उनमें से 100 को भरने का जगह यस 1 2 3 4 5 हो सकता था, बाकी बच गए 4 ही। फिर उसके बाद और कम हो गए 3, और तब 5 into 4 into 3। कितना आसान कहेगा। 3 digits numbers divisible by 5. Please note, 3 digits numbers divisible by 5, 5 से डिविजिबल हो, 5 डिविजिबल हो, तो क्या करेंगे? कोई भी 3 डिजिट्स नंबर होगा, लास्ट में 5 होगा तो वही तो 5 से कटेगा ना। अरे लास्ट में 5 होगा तभी तो 5 से कैंसिल होगा। इसलिए भाई देखिए 100 टेंस यूनिट्स में पहली जगह तो उसने कहा कि इनको भरो। क्यों भरो? अरे भैया अगर 5 वहां नहीं रहेगा तो 5 से कैंसिल कैसे 3 नंबर का होगा? अरे 125, 325, 425, 415 कुछ भी रहे, लेकिन 5 लास्ट में रहे। तो ये 5 आ गया, कहा हटिए साहब, आपको 5 नहीं रखना है, 5 को रखने का तरीका रखना है, 5 को बुलाने का तरीका। 5 वहां रख देता कि 5 रखे तो कितना वे हुआ? एक ही। आइए बैठिए। अब उसके बाद से बचे बाकी कोई भी। कहा बेटा अब तो तुम लोगों से तो कोई चिंता नहीं है, इसलिए आ जाओ 4 और 3 एक एक बैठ जाओ, यानी 2 जगहों को 4 और 3 तरीके से। पहले जो यूनिट प्लेस था बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। कहा गया नहीं भैया 5 को पहले वहीं पर बताओ। और एक प्रिंसिपल का लड़का था, और उसके बाद से 5 और लड़के थे, 4 और लड़के थे। और उसके बाद कहा कि देखो प्रिंसिपल का लड़का ना वो बस में आगे ही सीट पर बैठना है, बाकी कहीं लड़के बैठे। प्रिंसिपल का लड़का वॉज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, टीचर की अपनी दिमागदार था वो। तो उन्होंने कहा भैया 5 के लिए एक अगली सीट छोड़ करके बाकी तुम लोग कहीं बैठ जाओ। तो बाकी कहीं बैठ जाएंगे मतलब वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं ना। इसी तरह से 5 को वहां पर बैठाने का तरीका 1 वे, बाकी रिमेनिंग को 4 into 3, क्योंकि इनमें से अब कोई भी 4, इसमें कोई भी एक बैठ गया तो 3 एंड दैट इज 12 तरीका 4 into 3। एक और हम लोग रख लें। हाँ, फ्रॉम द डिजिट्स 0, फ्रॉम द डिजिट्स। देखिए मैथमेटिक्स में क्या ब्यूटी है। थक रहा है यार मेरा हाथ। हाँ ठीक है, अननेसेसरी ऐसे पकड़े, कोई बात नहीं। हाउ मेनी, चलिए यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। अब उसके बाद 2 डिजिट, यानी एक टेंस प्लेस है और एक यूनिट प्लेस है। अब आप बताइए आप लोग, कैन द टेंस प्लेस
कैन द टेंस प्लेस बी फिल्ड बाई जीरो? कोई भी ऐसा नंबर है, वो मास्टर लोग, सर लोग आपको दे देते हैं? अगर मान लो कि 50 मार्क्स का वो पेपर है, तो आपको दे दिए 09। अब डोंट बी हैप्पी कि 0 मिला है, और न कोई नंबर होता है 09, लेकिन वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं 0? क्योंकि बच्चे भी बड़े बदमाश होते हैं। वो अगर 7 है तो किनारे अपने हल्के से 2 लिख दिए, तो 27 बन गया। 20 इसलिए करते हैं, लेकिन वैसे 0 पहले लिखने का कोई मैथमेटिक्स नजरिया नहीं है, मैथमेटिक्स कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जब यहां पर 2 डिजिट्स बेस बना, तो ये वाला प्लेस कहा कि भाई इनमें से ये 0 तो आएगा नहीं। इसमें पहला रिजर्वेशन किसके बारे में सोचे? टेंस के बारे में सोचे। आप कहते थे यहां नहीं, गलत बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी उसी की जाएगी। अगर वहां से भरते 0 रह जाता तो यहां चिपक के बैठ जाता, सब गलत हो जाता। नहीं, पहले 0 को यहां पर नहीं बैठाएंगे। पहला काम कि 0 को यहां नहीं बैठाएंगे। तो 0 को नहीं बैठाएंगे तो कितने बचे? 5। तो यहां पर 5 को बैठा दो। 5 को नहीं बैठा दो, माने इन 5 में से कोई एक को बैठा दो। अब कितने बचे? 5 को बैठाने के बाद 5 माने इनमें से कोई भी एक को बैठा दिया 5 में से, तो 5 तरीके। यहां लिखता हूं बेटा वेज, नंबर ऑफ वेज, नॉट द पर्टिकुलर डिजिट। कितने वेज हुए? 5। 0 बैठ नहीं सकता था, 1 2 3 4 5 में से किसी एक को ले सकते थे। इनको चुनने का तरीका 5 था। अब इस जगह पर यूनिट प्लेस पर आया, 0 चिल्लाने लगा, अरे मुझे मार डालोगे क्या मुझे छोड़ करके? मैं भी तो बैठ सकता हूं कहीं। अरे तो यहां पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, वहां नहीं बैठ सकता था, लेकिन यूनिट प्लेस पर तो आ सकता हूं ना। अरे कोई नंबर होता है 10 20 30 होता है कि नहीं? 0 यूनिट प्लेस पर रहता है कि नहीं? उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसका कहना भी सही है। इसलिए अगला बैठने के लिए, अगली जगह भरने के लिए एक तो बेचारा कोई भी आ गया होगा, तो बाकी कितने बचे? 5 एंड हेंस 25। बात समझे कि नहीं? टेंस प्लेस पर दहाई के जगह पर 0 नहीं आ सकता था, इसलिए शेष 5 से किसी एक को बैठाना का तरीका बना। उसके बाद यूनिट प्लेस पर इकाई के जगह पर बैठाने का तरीका हमारे लिए हुआ कि इनमें से एक तो बैठ चुका है, तो बचा 5, है ना? अरे एक कोई बैठा होगा 1 2 3 4 5 में से, तो वो एक बैठ गया, तो वो 4। 0 कहा भाई अब हम भी रहेंगे, अब नहीं कह सकते हम नहीं बैठ, क्योंकि यूनिट प्लेस पर तो हमारी दावेदारी है। इसलिए फिर कहा गया कि नहीं ठीक है, इसलिए 25। थ्री डिजिट नंबर्स सेकेंड, three-digit numbers, how many can be found? Yes, 100 place, tens place, unit place, ये हुआ। How many 3 digits numbers can be made divisible by 5? बेटा जब भी 0 हो डिजिट्स में और डिविजिबिलिटी बाय 5 हो, तो अलग अलग करना, हमेशा अलग अलग करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी मैं इस पर टाइम नहीं खर्च कर रहा हूं, आप लोग घर पर सोचिएगा, अलग अलग करना। तो अब डिविजिबल बाय 5 नहीं तो गलत होगा। समटाइम्स बुक्स में गलत होता है, समटाइम्स टीचर्स गलत कर देते, इसलिए आप लोग ध्यान में रखना। टीचर्स, आई एम सॉरी, टीचर्स नहीं गलत करेंगे, मेरे बोलने में निकल आता है ना, कर हाँ। ये डिविजिबल बाय 5, तो मैंने कहा फर्स्ट केस 1,
when 0 is at यूनिट प्लेस, 0 यूनिट प्लेस पर होगा। तो 0 यूनिट प्लेस पर होगा तो क्या होगा, जितना भी नंबर अगर 3 डिजिट नंबर्स होंगे और 0 लास्ट में होगा तो 5 से कैंसिल। अब देख लो 5 से हमेशा कैंसिल होगा, या तो 5 रहे या तो 0 रहे, वो 5 से कैंसिल होगा। तो यहां पर आया हमने कि 0 रखने के लिए, तो देखो 100, टेंस और यूनिट्स, तो यहां पर 1 वे, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसलिए 0 को पहले बैठा दिया। अब कितना बचे, 5, अब तो बचे 5, तो रिमेनिंग से 5 यहां पर और 4 यहां पर, एंड दैट इज 20। सेकेंड केस, केस 2, व्हेन, बहुत प्यारा ये जगह है, आप सोचिएगा, व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, 5 इज एट यूनिट प्लेस, 5 वहां पर रहेगा, चलिए 100 यूनिट, टेंस, और दूर रखूं यूनिट, अरे टेंस और यूनिट, एंड 5 वहां पर है। तो 5 को, अच्छा 5, 0 यहां नहीं रखता हूं, 0 नहीं रखा, 0 को चुनने का तरीका, 5 को ले आने का तरीका, उनको बैठाने का तरीका, यानी 1, जब 5 यूनिट प्लेस पर रहेंगे तो। अब कितने बचे, 5 को, 5 मान लीजिए वहां से चला गया, अब बचा 0, 1, 2, 3, 4। अरे कहा रुको 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 रुको, ये 0 जो है यहां पर पड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, ये 0 100 प्लेस पर आया तो सब बर्बाद हो गया। इसलिए तब कहे क्यों, क्या करें, अरे यार तो इनमें से 1, 2, 3, 4 में से किसी को ले लो। अरे भाई 5 वहां पर लिया तो अब 0, 1, 2, 3, 4 हुआ ना, तो उनमें से किसी एक को लेते, नहीं नहीं नहीं, 100 प्लेस को शुरू ही नहीं होगा 0 से, इसलिए 1, 2, 3, 4 इनमें से ले लिया। अब कोई एक ले लिया, अब एक ले लिया तो 0 वाला कहा, तब तो आप हमको अब तो ले ही सकते हैं, हमको तो रख ही सकते हैं। तो कितने बचे, अरे 5 को यहां ले लिया, इनमें से एक लिया, तो अब कितना बचा, फिर से 4 बच गया ना। अरे देख, मान लो 3 आ गया हो, तो 0, 1, 2, 3, 0, 1 नहीं 1, 2, 3, 4 यानी 4, यानी यहां पर 60। या देखना अब टोटल कितने हुए, टोटल 20 + 16 और 20 × 16 कैसे होगा, अरे 4 जब बन गया 3 डिजिट्स का तो मल्टीप्लाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता, जब एक वर्ग पूरा हो गया, इसलिए 20 + 16 यानी 36। मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब काम अभी अधूरा रहता है। नेक्स्ट आइए कुछ उसमें से भी देखूं मैं, अभी तो सब अपने ही तरफ से निकाला, खाब सारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लिया। आइए जस्ट कम टू द क्वेश्चंस, कम टू द क्वेश्चंस माय डियर, कहां सोए रहते हैं आप लोग क्या, कम टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स या एक्सरसाइज। हाँ वो सब कर चुका हूं, हाँ चलिए, कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट मुझे यहीं से, हाँ देखिए अब इसमें से बहुत सारे लिखना नहीं, फाइंड n इफ फैक्टोरियल n + 2 = इतना, तो फैक्टोरियल n + 2 को उन्होंने लिखा n + 2 × n + 1 और बाकी बचा फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n + 2 × n + 1 = दिस मच, या n की वैल्यू निकलेगी। छोड़िए ये सब, डायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन लिखिए। आइए
Find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags, one below the other, on a vertical staff of 5 different flags. Very simple. 5p2. अरे 5 है, उनमें से 2 को लेकर के कैसे भी बनाना है 5p2. चलिए चलिए, होगा, कैलकुलेशन किए होंगे. नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स ऊपर आएगा क्या? हाँ चलिए. एटलीस्ट दिया था क्या? एटलीस्ट क्वेश्चन में तब एटलीस्ट हुआ होगा, एटलीस्ट हुआ होगा. कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स. तो फिर क्या हो गया कि 5, यहां पर देखो, यहां पर 5p2 प्लस 5p2 प्लस, वो मैंने एटलीस्ट नहीं देखा, 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5. कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को सिग्नल बनाना है. एक फ्लैग का स्टॉफ है, उनमें से 2 को लेकर के, 2 को लेकर के या अधिक को लेकर के, तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं. तो 5p2 प्लस 5. क्यों प्लस करेंगे सर? अरे उसने उसकी बात पूरी हो गई ना, 2 को फ्लैग लेकर के पूरी हो गई ना 5p2. 3 को लेकर के पूरा करना है तो इसलिए प्लस करेंगे. अधूरा रहता तो नहीं, मल्टीप्लाई करते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 digit odd numbers can be from 3 digits odd numbers can, हाँ कह रहा है रिपीटेशन हो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड एंड रिपीटेशन. चलिए ये देख लेता हूं. 1 2 3 4 5 6. क्वेश्चन, विच क्वेश्चन? फोर्थ. Fourth question is 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. And how many digit number? Form 3 digit numbers, 3 digits odd numbers, 3 digit odd numbers, 3 digits odd number, यानी यूनिट, टेंस एंड 100. ये 3 डिजिट ऑड नंबर हमने तो समझाया था, ऐसे ही होगा. इनमें से कह रहा है नहीं, यूनिट पर आप ऑड ही रखिए. अरे ऑड होगा, 1 3 5 अगर लास्ट में होता है यूनिट प्लेस पर तो ऑड नंबर कहलाएगा ना. 25 हो गया, 23 हो गया, 93 हो, कुछ भी हो गया. यहां तो 93 बनेगा नहीं. तो आप इनमें से ऑड नंबर को ले. भैया तेरा जगह तो पक्का है, तुम में से कोई एक आएगा. तो कहेंगे बाकी लोग, अरे बाकी लोग अंदर आना. ऑड नंबर कह रहा है इसलिए 3, यूनिट प्लेस पर 3. अब कितना बचे? कहा मर्जी, अब तो आप बड़े मजे में आप कहीं भी ले सकते हो. तो कितना? 1 ले लिया, इनमें से 3 ले लिया. अब बाकी कितने बचे? 1 3 5. उसके बाद से 1 ले लिया ना तो 5. अब तो 5 और 4 हो गया. कहीं भी जाए, इधर से उधर से. यह जगह बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. क्यों जगह इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि यूनिट प्लेस मस्ट बी फिल्ड बाय द ऑड डिजिट. सो 3. अब उसके बाद जितने 5 बचे, 5 4 एंड दैट इज 60. दिया है कहीं? कुछ किया होगा? हाँ. अरे नहीं, अच्छा चलिए. व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, इसमें नो रिपीटेशन. अच्छा, उसके बाद से अगर इफ रिपीटेशन इज देयर, इफ रिपीटेशन इज देयर, रिपीटेशन, तो यहां पर 3 यूनिट, टेंस, 100, यहां पर 3. क्यों? अरे उनमें से कोई भी एक रहेगा. बाकी कितने बचे? 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 बचे. कहें कैसे सर, एक तो यहां आ गया. अरे एक आ गया तो रावण की तरह से उसका सिर कटने के बाद फिर सिर जुड़ गया. क्यों जुड़ गया? कह रहा रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. तो रिपीट कर सकते हैं तो कुल कितना हुआ? 6. अरे भाई जो यहां आया वो फिर जिंदा हो गया, 6. तो यहां तो एक कम हुआ नहीं यार, नहीं कम हुआ.
वो तो फिर से जी रहे, तो उधर वाले लास्ट वाले में क्यों 3 रखे, क्या करें, उनमें से 3 में से एक को एक ले लिया, अब बाकी बचे 5, और वो 5 और जो लिया यहां ऑड वो फिर से आ सकता है, तो देयरफॉर हाँ कितना हो गया 108। देखो तो आंसर देखो, हाँ चलो 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 108। हाँ उसके बाद से 5th क्वेश्चन दे रहा 5p3, कौन नहीं बच्चा जानता है 5p3 का मतलब 3 स्टेप्स डाउन, 5 4 3, चलिए 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 वो होता होगा, हाँ 5 4 3 यानी 60 आता होगा उसका कहीं, हाँ छोड़ो, दुनिया भर का। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड टोटल, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10, कितने 10 लेटर से कर रहा है टोटल को लेकर के, कहा नहीं है लेकिन समझ उसका मतलब है। हाउ मेनी 4, नहीं 4 लेटर्स वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स यानी 10p4, छोड़िए बेटा, हाँ आया होगा उसका, चलिए कहाँ अच्छा उसके बाद क्वेश्चन 9 है क्या, 10 लेटर्स, हाँ 10p4, चलिए यस आगे। हाउ मेनी, अब ये नहीं ना, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रायंगल, जिसमें से विल बिगिन विथ टी शुरू में हो और ई अंत में, करा चुका हूं इस टाइप का आर्टिकल क्वेश्चन, 8 लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो ठीक तो है, किससे हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी 4 वाह जनाब 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, है ना, डिस्टिंक्ट डिजिट्स मतलब वो कोई नंबर नहीं दिया, उसने कहा टोटल कितना, जितने भी आप नंबर जानते हैं डिजिट, उनमें से 4 डिजिट का बनाइए, 4 डिजिट का बनाइए, तो 4 डिजिट का बनाइए तो 0, यही है टोटल डिजिट जो आपकी दुनिया में है। बड़ा फास्ट बढ़ रहा है भाई टाइम, है हाँ ये जरा ज्यादा ये है जरा फिर से समझ लीजिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट वाले नंबर्स कितने बनेंगे विद द डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ये नहीं बोला कि 1 2 3 4 5 से, ये नहीं बोला कि 1 2 3 4 5 या 3 4 5 6 7 9, ना करा, जितना भी डिस्टिंक्ट आपके पास डिजिट्स हैं जो आपके दुनिया के नॉलेज में हैं, उनमें से 4 डिजिट नंबर्स कितने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो कहेंगे भाई 4 डिजिट नंबर तो कुछ नहीं है, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10s प्लेस और यूनिट प्लेस, इतने बनेंगे। तब वो कहेंगे सर आपने बताया है कोई भी नंबर चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 9 डिजिट का हो या 3 डिजिट्स का हो, कितना भी हो नंबर जो बनता है कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो चलो बेटा तू तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा, तुमको छोड़ करके ही हम यहां पर लेंगे, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, सब जगह रखता था, यहां नहीं रह सकता है, तो कितने बचे 9। अब तो 0 कहाँ हाथ उठाया सर, अब तो मैं आ सकता हूं ना, हाँ बेटा आ सकता है, तो इनमें से कोई एक ले लिया 8, 9 में से कोई एक ले लिया तो 8 बचे हैं, और वो 9, फिर एक ले लिया 108, फिर एक ले लिया 7, और तब ये आंसर हो गया 9 into 9 into 8 into 7। देखो क्या होगा। ये मैंने बताया कि if any work can be done by m ways, the other work can be done by n ways, third work can be done by p ways, then the total work can be done together m into n into p. It should be switched off, m into n into p. And then second I told factorial 5 means you go from 5 to 1. I also have told my way of writing factorial is different. I look here, factorial 5 ऐसे लिखता हूं, और also I have told that if it is to be written NPR in your book,
it is written in bracket n comma r, but I shall write n top p then r. I also told 5p3 means 3 steps down, 5 4 3. I told that what will be the value of 9p2? You told me 9 into 8. Just next 2 स्टेप डाउन होंगे. उसके बाद मैंने कहा कि जब कभी भी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड आर्टिकल मैंने बोला तो उसके बाद मैंने बताया कि अगर इफ स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड विथ ई, ए और ई अपनी जगह पर रहेंगे, बाकी 5 अपने 5 जगहों पर कैन डांस फैक्टोरियल 5. लेकिन वही कहा कि ए एंड ई आर एक्सट्रीम प्लेसेस, मीन्स ए the words may begin with A, end with E, or begin with E and end with A, तो factorial 5 into factorial 2. About the digits, I always prefer that it should be in the way what I have told, that you make tens units and tens units or 100 tens units, और प्रेफरेबिलिटी आप बता दीजिए कि कौन सी जगह है, कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, एंड दैट यू कैन डू. ओके, अगेन द नेक्स्ट पीरियड आई शैल बी स्टार्टिंग, I shall be also exploring many of the typical questions in permutations.